हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर इंटर सीए का जो आरटीपी है फॉर जैन 26 अटेम्प्ट उसके क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहले आप लोगों को एक केस स्टडी दी गई है और उसके ऊपर एमसीक्यूज दिए गए हैं। चलो पहले हम केस स्टडी रीड करते हैं। मिस्टर विवेक मल्होत्रा, एन इंडियन रेसिडेंट, हैज 4 रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज इन इंडिया. 2 of them are in Delhi, of which one is self-occupied and second is let out for a monthly rent of 1,40,000 to Mr. Sushil, a salaried individual. The other 2 properties are in Mumbai. To reduce his tax liability, he gifted one of his residential house properties in Mumbai to his wife, Mrs. Anika, and the second one to his minor daughter, Miss Pooja, without adequate consideration in April 2024. Expected monthly rent of SOP in Delhi is 50,000 and expected monthly rent of the property in Mumbai is 75,000 each. He paid municipal taxes of 1,20,000 for let out property. ठीक है. In addition, Mr. Vivek sold a plot of land in Bangalore on 19th December 2024 for 49 lakhs, for which he paid 1% brokerage on sale consideration. The stamp duty value on the date of sale was 55 lakhs. This plot of land was purchased by him in 1992 for 3 lakhs. The fair market value and the stamp duty value of this plot of land on 1st April 2001 were 7.2 lakhs and 7 lakhs respectively. Mr. Vivek invested 12 lakhs in RECL bonds on 15th July 2025. Further, he has taken life insurance policy A on 15th May 2023 and policy B on 7th July 23 for 10 years with a sum assured of 35 lakhs and 25 lakhs respectively. The annual premium payable on this policy is 3.5 lakhs and 2.5 lakhs respectively. Mr. Vivek has opted out of a default tax regime under section 115 BAC. He has opted out of a default tax regime. CII for year 1-2 is 100 and 24-25 is 363. Based on the facts of the case scenario given above, choose the most appropriate answer of the following questions. क्या लिखा है क्वेश्चंस में? Compute income taxable under the head income from house property in the hands of Mr. Vivek. Compute the taxable income taxable under the head capital gains in the hands of Mr. Vivek. Determine the amount of tax credit to be available to Mr. Vivek for 24-25 if he has deducted, if tax has been deducted by the deductors. Next क्या क्वेश्चन है? In financial year 23-24, Mr. Vivek received maturity proceeds from both the policies, 40 lakhs and 27 lakhs respectively. Considering the most beneficial to Mr. Vivek, which of the following statement is correct? And last अपने को उसका tax liability compute करना है. चलो पहला क्या पूछा है? हाउस प्रॉपर्टी इनकम कंप्यूट करना. हाउस प्रॉपर्टी की सारी डिटेल्स आप लोगों को केस सिनारियो 1 में दी, पैराग्राफ नंबर 1 में दी गई है. मिस्टर विवेक मल्होत्रा के पास कितनी प्रॉपर्टी है? 4 प्रॉपर्टीज है. 4 प्रॉपर्टीज, जिसमें से 2 प्रॉपर्टी जो है वो उनके पास दिल्ली में है एंड बाकी की 2 प्रॉपर्टीज जो है वो मुंबई में है. दिल्ली वाली जो प्रॉपर्टी है उसमें से एक लेट आउट प्रॉपर्टी है और दूसरा सेल्फ ऑक्यूपाइड है. लेट आउट प्रॉपर्टी में इधर आपको मंथली रेंट जो आ रहा है दैट इज 1,40,000 पर मंथ एंड ये जो प्रॉपर्टी है इसका म्युनिसिपल टैक्स का भरा हुआ है. म्युनिसिपल टैक्स 1,20,000 पूरे साल का. अच्छा, जो दिल्ली वाली प्रॉपर्टी है उसका 50,000 रुपीज एक्सपेक्टेड रेंट है. एक्सपेक्टेड रेंट जो SOP है उसकी बात कर रहा हूँ. एक्सपेक्टेड रेंट इज 50,000. और जो मुंबई में प्रॉपर्टी है उसमें क्या हुआ है? तो मुंबई वाली जो प्रॉपर्टी है, मुंबई वाली प्रॉपर्टी उसने एक तो अपनी वाइफ मिसेस अनिका को दे दिया है और सेकंड जो है वो उसने अपनी
डॉटर को दे दिया है मिस पूजा को ट्रांसफर कर दिया है। अब विदाउट कंसिडरेशन, विदाउट एडिक्वेट कंसिडरेशन, इन दोनों प्रॉपर्टीज की जो एक्सपेक्टेड रेंट है, ये दोनों प्रॉपर्टीज की जो एक्सपेक्टेड रेंट है वो है 75,000 रुपीज़ पर मंथ। ये है 50,000 रुपीज़ पर मंथ और ये है 75,000 रुपीज़ पर मंथ। ये ईच प्रॉपर्टी की है, ईच प्रॉपर्टी की। अब म्युनिसिपल टैक्स भर दिया है, ठीक है। तो टोटल मिस्टर विवेक मल्होत्रा के पास कितनी प्रॉपर्टीज है? 4। अब आप दोस्तों थोड़ा सा पहले याद करो, इसने क्या किया है, 2 प्रॉपर्टीज खुद के नाम पे रखी है। एक प्रॉपर्टी वाइफ को दे दी और एक प्रॉपर्टी माइनर डॉटर को दे दी है। ये माइनर है, डॉटर। अब आप याद करोगे तो हमने सेक्शन नंबर 27 पढ़ा था। 27 के हिसाब से अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर करते हो टू स्पाउस या फिर माइनर फॉर नो कंसिडरेशन और फॉर इनएडिक्वेट कंसिडरेशन, तो कहने से जो भी इनकम जो भी प्रॉपर्टी आपने ट्रांसफर की है उसके डीम्ड ओनर आप ही बन जाते हो। सो ये सेक्शन 27 में क्या कॉन्सेप्ट था? डीम्ड ओनर का कॉन्सेप्ट था। तो आपको समझ में आ रहा है, ये वाइफ को जो प्रॉपर्टी दी है, ये वाइफ को जो प्रॉपर्टी दी गई उसका डीम्ड ओनर कौन बन जाएगा? मिस्टर विवेक। एंड जो डॉटर को प्रॉपर्टी दी है उसका भी डीम्ड ओनर कौन बन जाएगा? मिस्टर विवेक। सो विवेक जो ये दोनों की दोनों प्रॉपर्टीज का क्या बन जाएगा? डीम्ड ओनर। अब दोस्तों, अब टोटल विवेक के हाथ में हो गई है 4 प्रॉपर्टीज। एक तो लेट आउट है और बाकी 3 एसओपी हो गई। ये एसओपी, ये एसओपी और ये एसओपी। 3 एसओपी हो गई और एक लेट आउट हो गई। अब आप मैक्सिमम एसओपीज कितनी रख सकते हो? 2 एसओपीज रख सकते हो। तो अभी विवेक के हाथ में अगर 3 एसओपीज है तो 2 एसओपीज कंसिडर की जाएगी, तो एक क्या हो जाएगी? डीएलओपी हो जाएगी। लेकिन अब पहले तो अपन एलओपी से आंसर निकालते कितना है। एलओपी वाली प्रॉपर्टी लेट आउट, तो उसमें अपने को एक्सपेक्टेड रेंट तो दिया नहीं है, एक्चुअल रेंट ही दिया है। तो वही अपन समझ लेंगे कि जीएवी है अपना। तो देखो एक्चुअल रेंट इज 1,40,000 इंटू 12 करो, सो 16,80,000 आएगा। और इसमें से पहले म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर दो। 1,20,000 का म्युनिसिपल टैक्स जो है वो माइनस कर दो। सो 1,20,000 आपने अगर म्युनिसिपल टैक्स माइनस किया तो एनएवी कितना बच गया? 15,60,000। और इसमें से माइनस कर दो स्टैंडर्ड डिडक्शन, 30% का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी माइनस कर दो। सो माइनस 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन, 10,92,000। ये फाइनल आंसर आ गया फ्रॉम अ लेट आउट प्रॉपर्टी जो दिल्ली में था। दिल्ली वाला जो लेट आउट प्रॉपर्टी था उसका फाइनल आंसर इज 10,92,000, याद रखना। अब उसके बाद आपके पास एक एसओपी है दिल्ली में, 2 एसओपीज है मुंबई में। अब आप 3 एसओपीज में से 2 को ही एसओपी मान सकते हो, एक क्या बन जाएगा? डीम टू बी लेट आउट। अब आप देखो दिल्ली वाले प्रॉपर्टी का एक्सपेक्टेड रेंट इज 50,000 रुपीज पर मंथ, जबकि मुंबई वाले प्रॉपर्टीज का एक्सपेक्टेड रेंट इज 75,000 रुपीज पर मंथ। इनका एक्सपेक्टेड रेंट इज 75,000 रुपीज पर मंथ। तो आप ये दोनों प्रॉपर्टीज को एसओपी क्लेम कर लो, इसको और इसको, क्योंकि इसका एक्सपेक्टेड रेंट ज्यादा है। तो कहने से आप अगर इन दोनों में से किसी को भी डीएलओपी मानोगे तो आपको ज्यादा अमाउंट पे टैक्स लगेगा, क्योंकि इन केस ऑफ डीएलओपी योर एक्सपेक्टेड रेंट बिकम्स योर जीएवी। तो आप ये वाली प्रॉपर्टी जो है इसको डीएलओपी मान लो, ये वाली प्रॉपर्टी को डीएलओपी मान लो। तो अगर आपने उसको डीएलओपी माना तो आपका जीएवी कितना हो जाएगा? तो जीएवी हो जाएगा 6 लाख, क्योंकि मंथली रेंट कितना है अपना? 50,000 रुपीज। एंड इसमें से डायरेक्टली माइनस होगा स्टैंडर्ड डिडक्शन, क्योंकि कोई म्युनिसिपल टैक्स नहीं है, यही आपका एनएवी हो चुका। ये माइनस करो स्टैंडर्ड डिडक्शन, 6 लाख माइनस 30%, सो 4,20,000 बच गया। 4,20,000 प्लस 10,92,000 दोनों को ऐड करो, सो आंसर आ रहा है 15,12,000। 15,12,000 आपका आंसर आएगा। चलो देखते हैं कि ये ऑप्शन है कि नहीं है। कंप्यूट इनकम टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ विवेक, कहने से ये देखो 15,12,000। आप ये देखो करेक्ट आंसर इज 15,12,000। चलो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आ रहा है? तो नेक्स्ट अपने को कैपिटल गेन्स का इनकम पूछा है।
अब कैपिटल गेन्स में एक चीज़ क्या ध्यान में रखना, पहले तो आप लोग कैपिटल गेन्स में पहले तो ये ध्यान में रखो कि प्लॉट बेचा कब है, प्लॉट ऑफ लैंड इज सोल्ड कब सेल किया है, 19 दिसंबर 24, मतलब 23 जुलाई या उसके बाद। अब 23 जुलाई या उसके बाद आप सेल करते हो, तो जब आप इनकम कंप्यूट करोगे तब तो कहने से आपको इनकम कैलकुलेशन करना है विदाउट गिविंग बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन। बट यस, जब आप टैक्स कैलकुलेट करने जाओगे, टैक्स कैलकुलेट इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म, जब आप टैक्स कैलकुलेट करने जाओगे तो टैक्स में आपके पास दो ऑप्शंस आ जाते हैं, 20% विथ इंडेक्सेशन एंड 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। अगर प्रॉपर्टी इमूवेबल है तो, और पर्सन इज रेसिडेंट इंडिविजुअल या HUF। सो अगर प्रॉपर्टी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, सेकेंड कंडीशन रेसिडेंट इंडिविजुअल या HUF है, अगर यही असेट अक्वायर किया था अप टू 22 जुलाई और ट्रांसफर हुआ है ऑन और आफ्टर 23 जुलाई, ये चार कंडीशन सेटिस्फाई होने पे 112 आपको टैक्स कैलकुलेशन में दो ऑप्शन देता है, पे टैक्स आइदर एट द रेट ऑफ 12.5% एंड डोंट क्लेम बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन, और 20% विथ बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन। बट वो टैक्स कैलकुलेशन के वक्त आपको ऑप्शन मिलता है। अब यहां पे जब आप इनकम कैलकुलेट करोगे तो इनकम कैलकुलेशन में देखो, इन एडिशन मिस्टर विवेक सोल्ड अ प्लॉट ऑफ लैंड on 19th December 24 for 49 lakhs for which he paid 1% as a brokerage on sale consideration. The HDV on the date of sale was 55 lakhs. So अब देखो HDV 55 है, आपका जो कंसिडरेशन है दैट इज 49 lakhs. तो अब आप याद करो what will be the FVOC in this case? What will be your FVOC? FVOC क्या लेना पड़ेगा? तो अग्रीड वैल्यू जो है 49 lakhs, उसमें आपका उसका 110% कर दो, 110% करोगे तो इट विल कम टू 53.9 lakhs आएगा, विच इज स्टिल लेस देन योर HDV. सो योर FVOC इज कैन आई से 55 lakhs. 55 lakhs अपने को FVOC लेना पड़ेगा और उसमें से माइनस करो क्या, ट्रांसफर एक्सपेंसेस कितना हो जाएगा 49,000. ये गलती मत करना, ट्रांसफर एक्सपेंसेस 1% ऑन सेल कंसिडरेशन है. तो आप 55 lakhs में से 49,000 माइनस करो, सो 54,51,000 बच गया. अब आप कॉस्ट माइनस करो, तो कॉस्ट में देखो आपने असेट 92 में खरीदा हुआ है. सो इफ असेट इज अक्वायर्ड बिफोर 1/4/2001 के पहले अगर आपने कोई भी असेट अक्वायर किया है तो यू विल गेट एन ऑप्शन टू सब्सटीट्यूट फेयर मार्केट वैल्यू. फेयर मार्केट वैल्यू सब्सटीट्यूट करने का ऑप्शन मिलता है आपको. तो हम क्या करते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर सिलेक्ट करते हैं. लेकिन इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में योर फेयर मार्केट वैल्यू शुड नॉट एक्सीड स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू. तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू देखो 7 lakhs है, तो हम यहां पे माइनस क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितना 7 lakhs. 7 lakhs माइनस करो, 5451 माइनस 7 lakhs 47,51,000. और अब आपने खरीदे क्या है दोस्तों, बॉन्ड्स खरीदे हैं RECL के ऑन 15 जुलाई 2025. तो आप जरा देखो, आपने डेट ऑफ ट्रांसफर जो हुआ है ना उसके बाद 6 months के बाद बॉन्ड खरीदे, बॉन्ड. और 54 EC में टाइम लिमिट था कि 6 months में आपको बॉन्ड खरीद लेने चाहिए. आपने 6 months के बाद खरीदे तो इसका आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा. तो आपकी फाइनल इनकम हो जाएगी 47,51,000. 47,51,000. सो ये आपकी फाइनल इनकम हो गई. चलो उसके बाद क्या पूछा है, डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ टैक्स क्रेडिट टू बी अवेलेबल टू मिस्टर विवेक फॉर ईयर 24-25 इफ टैक्स हैज बीन डिडक्टेड बाय द डिडक्टर्स. चलो अब TDS कहां पे आएगा तो थोड़ा सा समझो. पहले तो ये जो रेंट पे कर रहा है, रेंट, मिस्टर सुशील जो है, जो सैलरीड इंडिविजुअल है, वो जो रेंट पे कर रहा है, कहने से सुशील को TDS काटना पड़ेगा अंडर 194 IB में TDS काटना पड़ेगा 194 IB के अंदर. 50,000 से ज़्यादा अगर रेंट है और अगर आप 194 I में कवर्ड नहीं हो, I, तो IB में आपको रेंट काटना पड़ता है. यू आर इंडिविजुअल एंड HUF. जो 194 I में कवर्ड नहीं है तो आपको 194 IB में काटना पड़ेगा अगर रेंट 50,000 या उससे ज़्यादा है तो अभी इसको TDS काटना पड़ेगा सुशील को. तो सुशील कितने पे TDS काटेगा, तो सुशील का TDS मैं यहाँ पे लिखता हूँ. देखो रेंट का जो पेमेंट है, रेंट वो है 1,40,000 इंटू 12,
सो 1,40,000 इंटू 12, सुशील पेमेंट कर रहा है टोटल 16,80,000 की रेंट का, उसमें 194 IB में साल में एक ही बार TDS कटता है, लास्ट मंथ में, याद करो। तो 2% रेट हो जाएगा TDS का, तो उधर 33,600 TDS आ जाएगा, ये आ गया अंडर 194 IB। और दूसरा दोस्तों, जो पर्सन को आपने प्रॉपर्टी बेची, जो बायर ऑफ प्रॉपर्टी है, ये वाला प्रॉपर्टी जो बाय कर रहा है आपसे, उसको भी, वो भी TDS काटेगा, वो पर्सन भी TDS काटेगा, आपने प्रॉपर्टी बेची है तो। और उधर 50 लाख या उससे ज़्यादा अगर कंसिडरेशन होता है तो फिर 50 लाख या उससे ज़्यादा कंसिडरेशन या HDV है, विच एवर इज हायर, तो उस पर TDS आ जाएगा। तो इधर HDV जो है वो 55 lakhs है, इस पे 1% आएगा, सो 55,000 इधर अमाउंट आ जाएगा। तो इसमें मैं 55,000 और ऐड कर दूं तो 88,600 का TDS आएगा, 88,600। चलो देखो 88,600 ऑप्शन है, पहला ही ऑप्शन है 88,600। नेक्स्ट क्या बोला है, इन अ ईयर 33-34 मिस्टर विवेक received the maturity proceeds from both of the policies, 40 lakhs and 27 lakhs respectively. Considering the most beneficial option to Mr. Vivek, which of the following statement is correct? इसमें से कौन सा करेक्ट है? तो आप देखो इधर हुआ क्या है, दो पॉलिसीज ली थी, एक का प्रीमियम 3.5 लाख था और एक का प्रीमियम 2.5 लाख था। अब तुम देखोगे तो 3.5 और 2.5 दोनों को मैं ऐड करूं तो वो हो जाता है 6 लाख। अब हमने जब सेक्शन 10(10)(d) पढ़ा था, 10(10)(d), तो उसमें देखो हमने इसके एक्सेप्शंस पढ़े थे, और एक्सेप्शन में एक एक्सेप्शन क्या था याद है, कि आपका प्रीमियम अगर 5 लाख रुपया क्रॉस कर देगा तो फिर जो भी पॉलिसीज आप लोगे कहने से उस पर हम आपको एग्जम्पशन नहीं देंगे। तो अब आप ये 3.5 लाख वाली पॉलिसी पे एग्जम्पशन लोगे, और ये 2.5 लाख वाली पॉलिसी जैसे ही आप 3.5 में ऐड करोगे, आपका प्रीमियम 5 लाख क्रॉस कर चुका, आपका प्रीमियम 5 लाख क्रॉस कर चुका। तो ये 3.5 लाख वाली जो पॉलिसी है जिसका प्रीमियम 3.5 लाख है, उस पे आप एग्जम्पशन ले सकते हो, इस पे आप एग्जम्पशन ले सकते हो। लेकिन आप ये 2.5 लाख वाली जो पॉलिसी है, जो प्रीमियम 2.5 लाख है जिसका, उस पे एग्जम्पशन लोगे तो आपका जो प्रीमियम का लिमिट था 5 लाख, उससे तो क्रॉस हो गया। तो आप इसको एग्जम्प्ट कर सकते हो क्योंकि इधर आपको एग्जम्पशन ज्यादा मिलेगा, और इसको आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स करना पड़ेगा। और दोनों पॉलिसीज का जो प्रीमियम है, प्रीमियम कहने से वो सम अश्योर्ड का 10% ही है, सो 10% से ज्यादा नहीं है, लेकिन 5 लाख से ज्यादा हो रहा है। दोनों पॉलिसीज का प्रीमियम अगर हम ऐड करेंगे तो 5 लाख से ज्यादा हो रहा है। तो 3.5 लाख वाली जो पॉलिसी है उस पर एग्जम्पशन ले लो, 2.5 लाख वाली पॉलिसी को आप टैक्सेबल कर दो। सो पॉलिसी ए पे एग्जम्पशन ले लेंगे और पॉलिसी बी को हम टैक्स कर देंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी इसका करेक्ट आंसर है। एंड लास्ट में आपको दोस्तों पूछा है टैक्स कंप्यूटेशन। ठीक है, चलो टैक्स कंप्यूटेशन पूछा है ना, तो पहले तो अपना हाउस प्रॉपर्टी इनकम कितनी थी, हाउस प्रॉपर्टी इनकम। तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम अपनी थी यहाँ पे 15,12,000। ये 15,12,000 इज योर हाउस प्रॉपर्टी इनकम। कैपिटल गेन्स की इनकम कितनी थी, कैपिटल गेन्स की इनकम 47,51,000, 47,51,000। ये आपका यू कैन से कैपिटल गेन्स का इनकम था, दोनों मिला के। अभी और कुछ बच गया है नहीं, बस ये तो बाद में मैच्योरिटी प्रोसीड्स तो 23-24 में आएगी ना। And you have opted out of a default tax regime, out of default tax regime, default tax regime से आप बाहर जा रहे हो, ठीक है। सो ये आपका 15,12,000 प्लस 47,51,000, ये आ गया 62,63,000। अब आप डिफॉल्ट स्कीम से बाहर जा रहे हो ना, बस एक गलती मत करना दोस्तों। मतलब क्या, आप ऑप्शनल स्कीम में जा रहे हो, ओल्ड टैक्स रेजिम में, तो आपको एक 80C में डिडक्शन भी मिल जाएगा। कौन सा, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम का 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन आ जाएगा, 1.5 लाख का। सो माइनस करो इसमें से 1.5 लाख, 61,13,000 आपका आंसर बचा है। बट यस, ये जो डिडक्शन माइनस हुआ है वो सिर्फ HP के सामने माइनस हुआ है, कैपिटल गेन के सामने नहीं हुआ है माइनस।
कैपिटल गेन के सामने माइनस नहीं हुआ है क्योंकि कैपिटल गेन पे स्पेशल रेट लग रहा है, ठीक है। मिस्टर विवेक हैज ऑप्टेड आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्स रेजिम, सो वो चीज ध्यान में रखना। चलो अब मैं क्या बोल रहा हूं समझो। अब क्या हुआ, अब पहले तो ये जो कैपिटल गेन वाला इनकम है ना, कैपिटल गेन वाला ये वाला इनकम, इसमें कहने से आपको टैक्स पेमेंट्स के वक्त ऑप्शन आता है, ऑप्शन या तो 12.5% टैक्स भरो या फिर 20% टैक्स भरो। सो ये जो कैलकुलेशन है दैट इज विदाउट इंडेक्सेशन, तो इस पे 12.5% आप कैपिटल गेन्स में कैलकुलेट करोगे तो 12.5% आपका आएगा 593,875। ये आपका कैपिटल गेन्स का कंप्यूटेशन में आंसर टैक्स कैलकुलेशन आएगा 12.5 के हिसाब से। 12.5 के हिसाब से करोगे तो इतना आएगा। अब अपन इंडेक्सेशन देखते हैं, इंडेक्सेशन लेने के बाद कितना आएगा। तो इंडेक्सेशन अगर आप करोगे तो आपका एफवीओसी जो है वो तो 55 का 55 लाख ही रहेगा, आपके ट्रांसफर एक्सपेंस भी सेम रहेंगे 49,000, बट अब आपको इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मिल जाएगा। आपका जो कॉस्ट था वो 7 लाख था, तो 7 लाख को आप इंडेक्स करोगे तो 7 lakhs मल्टीप्लाई बाय 363 डिवाइड बाय 100, सो 7 lakhs मल्टीप्लाई बाय 363 डिवाइड बाय 100, सो ये आ गया 25,41,000। चलो ये सब माइनस करते हैं, 21,49,000, 41,000 ये और 55 lakhs में से ये सब माइनस करो, फाइनल देखो 29,12,000 आपका कैपिटल गेन आएगा अगर आप इंडेक्सेशन का बेनिफिट लेते हो तो। और इस पे 20% टैक्स लगाओगे तो 5,82,000 आपका टैक्स आएगा, 5,82,000। तो कहने से यहाँ पे विदाउट इंडेक्सेशन 593,875 आ रहा है और विथ इंडेक्सेशन 582 आ रहा है, तो कहने से 582 बेनिफिशियल है। तो आपका जो कैपिटल गेन में टैक्स आ गया वो तो अपन 582 ले लेंगे। अब आपका जो हाउस प्रॉपर्टी इनकम है 15,12,000 का, उसके सामने आपने डिडक्शन माइनस किया होगा 1,50,000 का, लाइफ इंश्योरेंस तो 13,62,000 बच गया। तो अब आपकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम जो थी उसमें 15.12 lakhs में से 1.5 lakhs माइनस कर दिया तो 13,62,000 बच गया। ये 13,62,000 पे स्लैब रेट लग जाएगा। स्लैब रेट में 0 से लेके 2,50,000, 2,50,000 से लेके 5 लाख, 5 लाख से लेके 10 lakhs एंड अबाउट 10 lakhs। तो अगर हम टैक्स कैलकुलेट करें एज पर स्लैब रेट, तो पहले तो मैं 13,62,000 में से 10 lakhs हटा देता हूँ, 3,62,000 बचा, उस पर 30% टैक्स प्लस 10 lakhs के ऊपर 1,12,500 टैक्स। सो ये आ गया 221100, 221100। अब इसमें 5,82,000 ऐड कर देता हूं मैं, सो ये आ गया 8,03,100। अब दोस्तों एक गलती मत करना, आपकी जो इनकम है, इनकम वो 50 लाख से ज्यादा है, तो इसमें क्या लग जाएगा, इसमें लग जाएगा आप लोगों को सरचार्ज। तो ऐड करो 10% सरचार्ज, 10% सरचार्ज ऐड करो तो 883,410 आएगा एंड लास्ट में 4% HEC ऐड करो, 4% HEC, सो आपका फाइनल 918,746 आएगा, जिसको मैं राउंडिंग ऑफ करूंगा 918,750 पे, 918,750 पे मैं उसको क्या करूंगा, राउंडिंग ऑफ करूंगा। सो ये मेरा देखो, ये मेरा फाइनल टैक्स लायबिलिटी आएगा। कंप्यूट टैक्स लायबिलिटी, आपको टैक्स लायबिलिटी निकालना है, पेबल नहीं निकालना है कि कितना आपको पेमेंट करना है टैक्स का। इसमें से फिर TDS लास्ट में माइनस हो जाएगा, बट अभी अपने को टैक्स लायबिलिटी निकालना है। तो आपका फाइनल आंसर देखो 918,750। सो ये आप लोगों का केस स्टडी बेस्ड MCQ जो है वो कंप्लीट हुआ। अब दोस्तों क्वेश्चंस में ये वाला जो क्वेश्चन है दैट इज ऑन रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ इनकम। रेसिडेंशियल स्टेटस एंड स्कोप ऑफ इनकम के ऊपर ये क्वेश्चन है, जिसमें आपको दो चीजें पूछी है कि पर्सन अगर RB NOR होगा तो क्या और NR होगा तो क्या। RB NOR और NR, तो इंडियन इनकम्स जो भी होगी वो तो दोनों को टैक्सेबल होगी।
फॉरेन इनकम्स में अगर आप याद करोगे, फॉरेन इनकम्स में तो आरबीएनओआर को जो भी बिजनेस एंड प्रोफेशन से इनकम आएगी आउटसाइड इंडिया विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, उस पे टैक्स लगेगा। बाकी कहने से एनआर को टैक्स नहीं लगेगा और बाकी जो भी फॉरेन इनकम्स होगी उस पे दोनों को नहीं लगेगा। अच्छा, कोई इनकम अगर टैक्सेबल है तो उसका लॉस भी सेट ऑफ करने मिलेगा। सो आरबीएनओआर जो है ना, आरबीएनओआर, उसको एक चीज ध्यान में रखना, जो भी इनकम आएगी फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, बिजनेस एंड प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, वो इनकम टैक्सेबल है। अब वो इनकम टैक्सेबल है तो उसका लॉस भी आरबीएनओआर को सेट ऑफ करने मिलेगा। बाकी जितनी भी फॉरेन इनकम्स है वो आरबीएनओआर को भी टैक्सेबल नहीं है और एनआर को भी नहीं है। प्लस जो बिजनेस एंड प्रोफेशन आउटसाइड इंडिया विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया, वो एनआर को भी टैक्सेबल नहीं है, सिर्फ आरबीएनओआर को है। सो उसके बेसिस पे ये क्वेश्चन आप सॉल्व करना, सोल्यूशन इन डिटेल आप लोगों को दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है ना, अपन ने जब सैलरी चैप्टर पढ़ा था ना, सैलरी, तो सैलरी में अपन ने जो क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस किया हुआ है दोस्तों, अरियर्स ऑफ सैलरी करके कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। व्हाट इज अरियर्स ऑफ सैलरी? अरियर्स ऑफ सैलरी का मतलब है सैलरी ऑफ पास्ट ईयर्स विच इज रिसीव्ड इन करंट ईयर विच इज टैक्सेबल ऑल्सो इन करंट ईयर। तो उधर आप लोगों को एक रिलीफ मिलता है अंडर सेक्शन 89, क्योंकि यहां पे असेसी क्या बोल रहा था कि ये सैलरी मेरी पास्ट ईयर की है, इस पे अगर मुझे पास्ट ईयर में ही टैक्स लग जाता तो कम टैक्स लगता और अभी टैक्स लग रहा है तो ज्यादा लग रहा है। सो पहले हम लोग प्रूव करते थे क्या कि हम करंट ईयर में ज्यादा टैक्स भर रहे हैं एज कंपेयर टू पास्ट ईयर, तो उधर आपको रिलीफ मिलेगा। वो सम में भी आप देखोगे तो 3 साल के अरियर्स आपको मिले थे, ये सम में भी आपको 3 साल के अरियर्स मिले हुए हैं और तीनों साल के आप लोगों को नीचे स्लैब रेट्स भी दिए हुए हैं। यहाँ पे स्लैब रेट्स भी दिए हुए तीनों साल के। सो पहले तो आप लोग इनकम निकाल लो करंट ईयर की, फिर करंट ईयर की इनकम पे टैक्स निकालो, फिर अरियर्स हटा देना और टैक्स निकालना, तो आपको करंट ईयर में मिल जाएगा कि कितना अरियर्स पे आप टैक्स भर रहे हो, एंड सेम चीज आप रिपीट करना फॉर पास्ट ईयर्स। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ा सा मिक्स है, सेट ऑफ का भी थोड़ा पार्ट है एंड क्लबिंग का भी थोड़ा पार्ट है। सो वो आप एक बार देखना, बहुत ईजी सा क्वेश्चन है, सारे पॉइंट्स अपने क्लास में डिस्कस हुए हैं एंड इधर आपको थोड़ा सा डिडक्शन जो है वो भी मिलेगा। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, ये आपका टीडीएस के ऊपर क्वेश्चन है, जिसमें फर्स्ट पॉइंट तो बहुत इजी है, केटरिंग सर्विसेज ली हुई है, तो उसके रिलेशन में अपन ने 194C में डिस्कशन किया था। 194C पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स। ये जो नेक्स्ट वाला है ना, विजय हेल्थ सॉल्यूशंस लिमिटेड टीपीए, ये वाला पॉइंट समझो, 194J करके सेक्शन है जहां पे टीडीएस काटना पड़ता है ऑन प्रोफेशनल फीस, रॉयल्टीज, टेक्निकल फीस, नॉन कॉम्पीट फीस एंड डायरेक्टर फीस, उन सब चीजों पे आपको टीडीएस काटना पड़ता है। तो ये वाले केस में ना, ये वाले केस में क्या हुआ है कि विजय हेल्थ सॉल्यूशन इज अ टीपीए, दैट इज थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर, मेक्स पेमेंट टू वेरियस हॉस्पिटल्स अक्रॉस इंडिया towards settling cashless medical insurance claim on behalf of insurance companies. So ये जो TPA है, TPA, ये TPA क्या करता है, इंश्योरेंस कंपनीज के बिहाफ पे सारे हॉस्पिटल्स को पेमेंट करता है। अब देखो, अगर कोई पर्सन हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और उसका मेडिक्लेम है, मेडिक्लेम, तो ये पर्सन इंश्योरेंस कंपनी को इन्फॉर्म करेगा। अब इंश्योरेंस कंपनी के पास कितने सारे रिक्वेस्ट आ जाएंगे मेडिक्लेम के डेली, तो इंश्योरेंस कंपनी ये पूरा का पूरा काम आउटसोर्स कर देता है टू टीपीए, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर को आउटसोर्स किया जाता है। तो अब ये थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन हॉस्पिटल को पेमेंट कर रहा है, इसीलिए देखो क्या लिखा है, विजय हेल्थ सॉल्यूशंस लिमिटेड अ टीपीए मेक्स पेमेंट टू वेरियस हॉस्पिटल्स अक्रॉस इंडिया towards settling cashless medical insurance claim on behalf of insurance company। तो इंश्योरेंस कंपनी ने इनको काम आउटसोर्स कर दिया है। ड्यूरिंग द ईयर 24-25 द टोटल पेमेंट विच इज मेड बाय विजय हेल्थ सॉल्यूशंस लिमिटेड टू लाइफ केयर हॉस्पिटल्स फॉर कैशलेस क्लेम इज 12 lakhs। तो क्या इस पे टीडीएस काटना पड़ेगा? तो आंसर इज यस, 194J में
TDS काटना पड़ता है यहाँ पे। तो जब भी TPA पेमेंट्स करेंगे हॉस्पिटल्स को, उस पर भी आपको TDS जो है वो आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा? अंडर 194J। फिर ये एक फुल फ्लेज क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आप टोटल इनकम का क्वेश्चन दिया गया है, आपको टोटल इनकम निकालनी है एंड टैक्स लायबिलिटी जो है वो भी आपको कंप्यूट करनी पड़ेगी। सारे पॉइंट्स अपने डिस्कस किए हुए हैं, पूरा डिटेल में इसका सोल्यूशन भी आप लोगों को मिलेगा। सो आप देख लो यहाँ पे पूरा क्वेश्चन एक बार रीड करना, सोल्यूशन रीड करना। कुछ भी डाउट हो तो यू कैन मैसेज मी एट एनी टाइम डाउट आप अपना भेज सकते हो। सो यहाँ पे आप लोगों का RTP का जो डिस्कशन है वो कंप्लीट होता है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू फ्रेंड्स।